अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी फॉलो कर रहे होंगे। आज हम अपने टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं जी, T7। इससे पहले हम 6 टेस्ट जो है वो कर चुके और आज आपका 7वां टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैसेज मेनली डिस्कस? बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो है वी ऑल नो कि हमने पहले क्या करना होता है, बॉटम अप अप्रोच के थ्रू या हंटर्स अप्रोच के थ्रू हमने क्या करना होता है, सबसे पहले उसको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैसेज मेनली डिस्कस? क्लस्टर्स एंड द सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, an astronomical problem that has now been solved, a recent development in astronomy, the incredible distance between galaxies. The word evenly in line 1 is closest in meaning to. अब line 1 हमने start ही में देख लेना है उसको। Uniformly, predictably, relatively and paradoxically. What conclusion? Paradoxically कहते हैं, paradox से difference के मानों में जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, differently, paradoxically. What conclusion can be made about the galaxies that are not found in clusters? They have never been observed. They are larger than other galaxies. They are not actual galaxies but parts of galaxies. They are outnumbered by galaxies that do occur in clusters. Next अगर आप देखते हैं तो कहते हैं the word globular in line 3 is closest in meaning to immense, spherical, dense and brilliant. लाइन 1 थी और उसके बाद लाइन 3 अब हमने देखेंगे। The author would probably characterize the existence of clusters of superclusters as impossible, surprising, theoretical and certain. Then according to the passage, in what way is the local group typical of galactic clusters? In its size, in the number of galaxies it contains, in its shape and in the types of galaxies that make it up. ठीक है, we are talking about galactic clusters. ठीक है कि look in what way is the local group typical of galactic clusters? That what is the common thing between local groups and galactic clusters? Okay जी. Then in the local group, which of the following types of galaxies are most numerous? Large spirals, medium-sized spirals, regular elliptical and dwarf elliptical. ठीक है, we are talking about local group. All of the following are visible from somewhere on the earth without a telescope except the clouds of Magellan, Andromeda, the Triangulum Spiral and the Milky Way. याद रखें, we are talking about except. डिटेल्ड क्वेश्चन है और बार बार मैं आप बच्चों को बता चुका हूँ कि डिटेल्ड क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना होता है। वजह उसकी क्या होती है कि हमारा पैटर्न अमूमन ये बना होता है थ्रू आउट द पैसेज कि हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो उस पैसेज में शामिल होती हैं, हालांकि हमने वो चीज़ इसमें करनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने वो चीज़ करनी होती है जो कि शामिल नहीं है। देन नंबर 10 पर अगर आप जाते हैं, नंबर 9 पे अगर हम जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द लोकल ग्रुप एंड द विर्गो क्लस्टर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉमन? लोकल ग्रुप और विर्गो क्लस्टर में क्या चीज़ें कॉमन है? Both are rich in galaxies, both emit rays, both are the part of the same supercluster, both are small clusters. Then the word riddle in line 21 is closest in meaning to tool, puzzle, theory and clue. अब हम इसकी जा रहे हैं जी पैसेज रीडिंग पे। Galaxies are not evenly distributed throughout the universe. पहली लाइन में उसने कहा था इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिवर्स। अब इवनली यहाँ पे को आपको समझ आ रही है, कोई इक्वली यूनिफॉर्मली इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अ फ्यू आर फाउंड अलोन बट ऑलमोस्ट ऑल आर ग्रुप्ड इन फॉर्मेशंस टर्म्स गैलेक्टिक क्लस्टर्स। अब यहाँ पर फिर और बात वाज़ेह होगी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना होने का मतलब क्या है कि उनकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है, वो फ़र्क है। ठीक है, डिफरेंट है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इट मीन्स कि इवनली क्या होगा कि अगर उन्हें एक तरतीब से एक पर्टिकुलर पैटर्न पर जो है उन्हें उनकी फॉर्मेशन जो है वो की जाए। A few are found alone, but almost all are grouped in formations termed galactic clusters. These formations should not be confused with stellar clusters.
globular clusters of stars that exist within a galaxy. The size of the galactic clusters varies enormously, with some clusters containing only a dozen or so members and other containing as many as 10,000. Moreover, galactic clusters themselves are a part of larger clusters of clusters termed superclusters. It is surmised that even clusters of superclusters are possible. ये उसने पीछे हमसे जो है वो पूछा हुआ है कि सुपर क्लस्टर्स के जो क्लस्टर्स हैं वो भी पॉसिबल हैं. Our galaxy, the Milky Way, is part of the galactic cluster called the local group, which has 20 members and is typical in terms of types of galaxies it contains. ये पीछे क्वेश्चन था कि it is typical for the types of galaxies it contains. There are 3 large spiral galaxies. Andromeda, the largest galaxy in the group, ये हमने पीछे इसके मुतालिक पढ़ा. The Milky Way, the second largest galaxy, including the large cloud of Magellan and the small cloud of Magellan. ठीक है, ये small cloud of Magellan और large cloud of Magellan ये किसका पार्ट है? They are the part of the second largest galaxy, the Milky Way. There are 4 regular elliptical. There are 4. Sorry. ये क्लाउड ऑफ मैगेलन और स्मॉल क्लाउड ऑफ मैगेलन दे आर डिफरेंट, उसका हिस्सा नहीं है. सॉरी. देयर आर 4 रेगुलर एलिप्टिकल गैलेक्सीज. द रिमाइंडर आर डॉर्फ एलिप्टिकल. ठीक है, अब ये डॉर्फ एलिप्टिकल के मुतालिक भी जो है उसने पूछा हुआ है कि 4 रेगुलर हमारी गैलेक्सीज हैं जो ऊपर हमने पढ़ ली. मिल्की वे पढ़ ली, एंड्रोमेडा पढ़ ली और मैगेलन के जो 2 क्लाउड्स हैं, लार्ज क्लाउड और स्मॉल क्लाउड. Other than our own galaxy, only Andromeda and the clouds of Magellan can be seen with a naked eye. कि हमारे अलावा और कौन सी देखी जा सकती है naked eye से? Andromeda और clouds of Magellan, ये 2 देखी जा सकती हैं. अब इन 3 के अलावा जो है वो कोई चीज़ नहीं देखी जा सकेगी. हमने वो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो है वो करना. And the clouds are visible only from the southern hemisphere. In the vicinity of the local group, vicinity कहते हैं area, in the vicinity of the local group are several clusters, each containing around 12 members. The nearest cluster rich in members is the Virgo cluster, which contains thousands of galaxies of all types. Like most large clusters, it emits X-rays. The local group, the small neighboring clusters, and the Virgo cluster form part of a much larger clusters, the local supercluster. ठीक है जी. अब यहाँ पर उसने बता दिया कि लोकल ग्रुप एंड द वर्गो क्लस्टर ये क्या है? ये दोनों मिलकर एक बड़ा क्लस्टर बना रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? लोकल सुपर क्लस्टर. सो वो जो पीछे क्वेश्चन था कि वर्गो क्लस्टर में और लोकल ग्रुप में जो है वो क्या फ़र्क है, तो क्या सॉरी सिमिलैरिटी है. तो सिमिलैरिटी इनमें क्या बन रही है कि बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ सेम लोकल सुपर क्लस्टर. The existence of the galactic clusters presented a riddle to the scientists. riddle हमने पढ़ा. ठीक है, the missing mass problem. ठीक है, अब riddle का मतलब अगर आपको नहीं भी पता तो आगे मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आपको, कि synonyms में आपने ये बात ख़ास तौर पे देखनी है कि synonyms जहाँ भी वो पूछेगा उसके अगले 1-2 वर्ड्स, 1-2 लाइन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. तो यहाँ पर अगर आपको riddle का मतलब नहीं भी पता तो आगे उसने बता दिया the missing mass problem. So you can say you can guess कि riddle का मतलब क्या होगा. riddle का मतलब obviously problem, puzzle, enigma. ठीक है, इस context में जो है कोई चीज़ जो है वो आएगी क्योंकि उसने उसको प्रॉब्लम खुद से प्रॉब्लम उसने कह दिया. Clusters are presumably held together by the gravity generated by their members. However, measurements showed that the galaxies did not have enough mass to explain their apparent stability. Why didn't these clusters disintegrate? Disintegrate होता है scatter. ठीक है, कि वो बिखरते क्यों नहीं है? It is now thought that galaxies contain great amounts of dark matter which cannot be directly observed but which generates gravitational pull. This matter includes gas, dust, burnt out stars and even black holes. ठीक है, तो ये उसने पूरे का पूरा थीसिस जो है वो हमें दे दिया. Which of the following does the passage mainly discuss? किस चीज़ पे उसका डिस्कशन है? पहले ऑप्शन बी हम देखते हैं. An astronomical problem that has now been solved. नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम का तो जिक्र उसने बिल्कुल एंड पे जाके किया है, एंड दैट इज़ द मिसिंग मैथ प्रॉब्लम.
ठीक है, इसके ऊपर पूरे का पूरा जो पैसेज है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम का जिक्र नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट इन एस्ट्रोनॉमी, कोई रिसेंट डेवलपमेंट जो है डिस्कस ही नहीं की हुई। द इनक्रेडिबल डिस्टेंसेस बिटवीन गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के जो विद इन द गैलेक्सीज है या बिटवीन द गैलेक्सीज, बिटवीन टू डिफरेंट गैलेक्सीज है, उसका डिस्टेंस जो है वो उसने पूरे पैसेज में जो है वो कहीं भी डिस्कस नहीं किया हुआ। So the best option is clusters and superclusters of galaxies. Option A. Then the word evenly in line is closest in meaning to, मैंने आपको बता दिया था कि evenly का मतलब क्या था, not, उसने कहा ना not evenly distributed, और आगे वो कह रहा है कि कुछ ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स में है, कुछ ग्रुप्स में नहीं है, तो इट मीन्स कि क्या है वो एक जैसे सारी तरह से यूज़ नहीं हुए हुए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, मैं इसके सामने आपके लिखता भी जाता हूँ ऑप्शंस, सो दैट के आप लोगों को द फर्स्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है, क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, सेकेंड की ऑप्शन जो है अगेन दैट इज ए, यूनिफॉर्मली। इवनली मीन्स इक्वली, यूनिफॉर्मली, एक तरतीब से, सिमेट्रिकली, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप उसको यूज़ करेंगे। बट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट गैलेक्सीज दैट आर नॉट फाउंड इन क्लस्टर्स, जो वो गैलेक्सीज जो कि क्लस्टर्स में नहीं है उनके बारे में क्या ओपिनियन जो है वो इस में दी हुई है। दे हैव नेवर बीन ऑब्जर्व्ड, मुमकिन ही नहीं है, बिकॉज अगर ऑब्जर्व नहीं की हुई, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इफ़ दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड और इफ दे हैड नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, देन फिर हम उनको गैलेक्सीज कैसे कह रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं कि दे आर इन ग्रुप्स और दे आर नॉट इन ग्रुप्स। सो इफ़ वी आर सेइंग दैट दे आर नॉट इन ग्रुप्स, दे आर नॉट फाउंड इन क्लस्टर्स, तो फिर यकीनन दे आर ऑब्जर्व्ड, उन्हें देखा गया है, तो तभी ये कोई ऑब्जर्वेशन, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दे आर लार्जर देन अदर गैलेक्सीज, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो ग्रुप्स में है ही नहीं वो कैसे ग्रुप्ड गैलेक्सी से बड़ी हो सकती हैं। तो मतलब एक जो क्लस्टर है उसमें 10 गैलेक्सीज हैं और एक अकेली गैलेक्सी उन 10 गैलेक्सी से बड़ी होना मुमकिन नहीं है, और ना ही ये इसमें डिस्कस किया गया। दे आर नॉट एक्चुअली गैलेक्सीज बट पार्ट्स ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, पार्ट्स ऑफ गैलेक्सीज तो हो नहीं सकती, बिकॉज वो ऊपर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आप ज़रा पढ़ें तो वो कहता है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट गैलेक्सीज, तो वो खुद उनको गैलेक्सीज कह रहे हैं खुद से, ठीक है, तो फिर पार्ट ऑफ गैलेक्सीज तो ना हुई। अगर पार्ट ऑफ गैलेक्सीज होता तो क्वेश्चन में भी क्या पूछता, क्वेश्चन में भी पूछता पार्ट ऑफ गैलेक्सीज कह के। सो दे आर आउट नंबर्ड बाय गैलेक्सीज दैट डू अकर इन क्लस्टर्स, ठीक है, आउट नंबर्ड ज़रूर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी जी, ऑप्शन हमारे पास बचेगी डी, ठीक है। आउट नंबर का मतलब होता है तादाद में बहुत ज़्यादा कम होना, ठीक है, कि ऐसी गैलेक्सीज जो अकेली हैं, जो क्लस्टर्स की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करती, वो बहुत ही कम है उन गैलेक्सी के निस्बत जो कि क्लस्टर्स की सूरत में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब आगे देखें, कहते हैं द वर्ड ग्लोबुलर इन लाइन 3 इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। अब लाइन 3 में आप देखें वो कहते हैं दिस फॉर्मेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द स्टेलर क्लस्टर्स, ग्लोबुलर क्लस्टर्स ऑफ द स्टार दैट एग्जिस्ट विद इन अ गैलेक्सी। तो ग्लोबुलर का क्या मतलब है, इमेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं असल, अब ना इसको थोड़ा सा समझ लें, आप फिर पढ़ें। दिस फॉर्मेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द स्टेलर क्लस्टर्स, ग्लोबुलर स्टार्स ऑफ द स्टार्स, ग्लोबुलर क्लस्टर्स ऑफ द स्टार्स दैट एग्जिस्ट विद इन द गैलेक्सी। अब उनकी शेप की बात कर रहा है, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ऊपर वाली 2 लाइन्स में हमने फॉर्मेशन की पढ़ी, तो फॉर्मेशन के हिसाब से देखें इमेंस, इसका फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका स्टाइल से, उसकी डिज़ाइन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। डेंस का ताल्लुक़ भी डिज़ाइन से नहीं है और ब्रिलियंट का ताल्लुक़ भी डिज़ाइन से नहीं है। सो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगी, एक ही ऑप्शन है जिसका ताल्लुक़ उसकी शेप से है, एंड दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ स्फेरिकल। The author would probably characterize the existence of clusters of superclusters as impossible, surprising, certain and theoretical। अब ये देखें, ये उसने
कहा था बड़ा इजीली कि बड़ा क्लियरली उसने मेंशन किया था कि क्लस्टर्स के भी जो सुपर क्लस्टर्स हैं, ठीक है, उनके भी पहले अगर आप पहला पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़े ना तो उसमें वो क्या कहता है कि इट इज़ सरमाइज्ड दैट इवन क्लस्टर्स ऑफ सुपर क्लस्टर्स आर पॉसिबल, कि सुपर क्लस्टर्स के जो क्लस्टर्स हैं वो भी क्या हैं, वो पॉसिबल हैं। तो अब वो इम्पॉसिबल तो ख़त्म हो गया ए ऑप्शन। देन सरप्राइजिंग भी नहीं है, बिकॉज वो तो कह रहे हैं कि अभी से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल, और सर्टन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ ओनली थॉट, ठीक है, अभी तक कोई एविडेंस जो है वो इसके बारे में नहीं है। सो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगी दैट इज़ ओनली थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि अभी कोई यकीन से नहीं कोई बात कही हुई, ठीक है, अभी एक एज्यूम कर रहे हैं हम, और वो एजम्पशन ही है, अभी तक उसके बारे में कोई हतमी बात जो है वो नहीं की जा सकती। देन नंबर 6 पे है जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन व्हाट वे इज़ द लोकल ग्रुप टिपिकल ऑफ गैलेक्टिक क्लस्टर्स। ये जब हम पढ़ रहे थे पैसेज मैंने आपको ख़ास तौर पे हाईलाइट भी किया था कि इन इट्स साइज़ की वजह से तो नहीं है, इन द नंबर ऑफ गैलेक्सीज इट कंटेन्स इसकी वजह से भी नहीं है, इन इट्स शेप इसकी वजह से भी नहीं है। असल बात उसने क्या की थी, इन द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक इट अप, कि असल बात क्या है गैलेक्टिक क्लस्टर्स की कि इनमें एक जैसी गैलेक्सीज, एक टाइप की गैलेक्सीज जो हैं वो शामिल होती हैं। सो ऑप्शन 6 जो हमारे पास बनेगी दैट विल बी ऑप्शन डी। नंबर 7 पे जाएं जी, इन द लोकल ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर मोस्ट न्यूमरस, ठीक है, ये पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था, लार्ज स्फेरल्स नहीं, मीडियम साइज स्फेरल्स नहीं, रेगुलर इलिप्टिकल नहीं, डॉर्फ इलिप्टिकल जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है कॉमन टाइप जो है वो इसकी यही जो है वो यूज़ की जाती है। तो डॉर्फ इलिप्टिकल जो है दैट विल बी आर ऑप्शन। ये आप पीछे इसको पढ़ भी सकते हैं, आपने इसको अगर हाईलाइट किया हो तो कहता है लाइन नंबर, there are also 4 medium sized spherical galaxies, line number 11 पे, including the large cloud of Magellan and there are also 4 medium sized spheral galaxies including the large cloud of Magellan and the small cloud of Magellan. There are 4 regular elliptical galaxies, ठीक है, 4 वो हैं 4 वो हैं, और बाकी जितनी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो क्या हैं, डॉर्फ इलिप्टिकल हैं, ठीक है। तो डॉर्फ इलिप्टिकली जो है वही, क्योंकि वो देखिए न्यूमरस गैलेक्सीज की बात करता है कि बेतहाशा गैलेक्सीज हैं, और उसमें से जो उसने गिनवाई हैं वो कितनी है, 8-10 हैं, और बाकी सारी की सारी उसने क्या कहा है, वो क्या कहा है, सारी डॉर्फ इलिप्टिकल हैं। तो यही वो कह रहा है कि लोकल ग्रुप में जो है वो सबसे ज़्यादा गैलेक्सीज कौन सी हुई जो काउंटेबल हैं, वो तो उसने गिनवाई हैं 10-12, बाकी सारी की सारी क्या कहते हैं, डॉर्फ इलिप्टिकल। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो ऑप्शन डी है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विजिबल फ्रॉम समवेयर ऑन अर्थ विदाउट अ टेलीस्कोप एक्सेप्ट, अब ये देखें 3 उसने बताई थी, द क्लाउड्स ऑफ मैगेलन ये भी किया जा सकता है, एंड्रोमीडा भी की जा सकती है, और मिल्की वे तो उसने कहा था कि बिसाइड आवर ओन, कि हम अपनी तो देख ही सकते हैं गैलेक्सी, अपनी गैलेक्सी के अलावा 2 उसने बताई थी, क्लाउड्स ऑफ मैगेलन एंड एंड्रोमीडा, तो ये दोनों तो देखी जा सकती हैं, और मिल्की वे तो हमारी अपनी गैलेक्सी है वो भी देखी जा सकती है। सो ऑप्शन जो नहीं देखी जा सकती वो ट्रायंगुलम स्फेरल है, और इसके मुतालिक जो है आपके पैसेज में जो है वो कोई तज़किरा भी नहीं हुआ हुआ। और फिर कह रहा हूँ याद रख लें, हमने वो चीज़ें करनी है, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में वो चीज़ें करनी है जो कि उस पैसेज का हिस्सा नहीं है। Then according to the passage, the local group and the Virgo clusters have which of the following in common, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या चीज़ कॉमन है, वो देखिए जी, both are rich in galaxies, नहीं, both emit rays, no, both are the part of same super cluster, ये मैंने अभी डिस्कस करते हुए भी आपको बताया था कि इन दोनों में क्या है, ये दोनों सेम सुपर क्लस्टर जो है उसके मेंबर्स हैं। नंबर 10 पे हैं जी, द वर्ड रिडल इन लाइन 20, अभी आपको याद है मिसिंग मैथ्स प्रॉब्लम उसने उसमें एक्सप्लेन किया था, तो मिसिंग मैथ्स प्रॉब्लम जो है उसको आप अगर देख लें तो वहाँ पर
बड़ा इजीली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिडल का मतलब क्या है। वो खुद उसको एलाबोरेट कर रहा है कि इट इज़ अ मिसिंग मैथ्स प्रॉब्लम। सो कोई प्रॉब्लम, कोई पज़ल, कोई एनिग्मा, कोई इस टाइप की चीज़ जो है वो होगी। तो उसमें से पज़ल जो है उसने हमें दिया हुआ है ऑप्शन, इट विल बी ऑप्शन बी। बाकियों को ज़रा देख लें एहतियातन। देखिए टूल कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी या थ्योरी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्लू, क्लू भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर क्लू जो है, क्लू और थ्योरी ये तो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ठीक है, ये आपके मसाइल को हल करेंगे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब हम आगे चल रहे हैं बेटे अपने एनालॉजी के लेक्चर पे। और एनालॉजी का जो टेस्ट है वो आपका बड़ा वाइटल होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज़रा उसको समझ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी जो वेरिएंस है वो भी बताता जाऊँ। अच्छा जी, इसमें मेरी कोशिश होगी कि आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ जो वन लाइनर्स हैं वो भी डेवलप करते जाएं, ठीक है जी। एनॉयड और फ्यूरियस, पहली चीज़ आप देखें, पहला आपका जो एमसीक्यू है नंबर 11। अब इसमें क्या करेंगे, एनॉयड ये डिग्री और इंटेंसिटी का बेसिकली रिलेशन है, ठीक है। एनॉयड इज द माइल्डर फॉर्म ऑफ फ्यूरियस, एनॉयड इज द माइल्डर डिग्री ऑफ फ्यूरियस, या इसको उलट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि फ्यूरियस इज द इंटेंसर डिग्री ऑफ एनॉयड। एनॉयड क्या होता है, नाराज़ होना, और फ्यूरियस क्या होता है, शदीद डैश पे आ जाना, गुस्से में आ जाना, ठीक है इसको। तो अब इसके हिसाब से लेफ़्ट या राइट, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, दोनों सूरतों में आप कह सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको जो है वो लेफ़्ट से राइट चूज़ किया, एनॉयड से फ्यूरियस पे गए, फ्यूरियस से एनॉयड पर भी आप आ सकते थे, ठीक है। अब आप देखें, हेड इज़ द माइल्डर डिग्री ऑफ लेग्स, नो। एडिफिस इज़ द माइल्डर डिग्री ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब इसको एक और तरह से भी आप ज़रा देख लीजिएगा, एक और भी बड़ा आपको ना क्लू मिल जाएगा इसमें। तो आप देखते रहिएगा एनालॉजीज़ में ख़ास तौर पे ना, वो ये है कि आप कोशिश करें कि जब आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं ना, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ ऑड कलर में, बल्कि लिख देता हूँ, लुक आउट फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जो क्वेश्चन है ना उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें, उससे आपको नीचे आइडिया हो जाएगा कि नीचे मैंने ऑप्शन भी वो चूज़ करनी है जो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखती हो, क्योंकि रिलेशन तभी वैसे ही बनेगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो नीचे भी, जैसे अब यहाँ पे एनॉयड और फ्यूरियस के हैं, ये एडजेक्टिव हैं, तो नीचे भी हमने वही ऑप्शन ढूंढनी है जो एडजेक्टिव्स हों, क्योंकि डिग्री किस में पॉसिबल होगी, किसका, ये क्वेश्चन किसका है, डिग्री का। तो डिग्री इज ओनली पॉसिबल इन एडजेक्टिव्स। नाउन्स में तो डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नाउन में तो इंटेंसिटी, शिद्दत मुमकिन नहीं है ना, ठीक है। तो शिद्दत, इंटेंसिटी या जो एक कह लें कि उसकी माइल्डनेस है वो किस में होगी, दैट विल ओनली बी पॉसिबल इन एडजेक्टिव। अब इसमें आगे देखें, सी ऑप्शन आप इस बिना पे एक्सक्लूड कर देंगे, किस बिना पे जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बुनियाद पे। अब एडिफिस का मतलब आपको नहीं पता कि क्या है, बिल्डिंग का मतलब पता है आपको, ठीक है। तो बिल्डिंग का अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे ना, बिल्डिंग क्या है, नाउन है, ऊपर हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो चाहे एडिफिस का मतलब नहीं भी पता, फिर भी आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ एडिफिस। और ये बड़ी ज़रूरी बात है आप बच्चों के लिए एनालिसिस में ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपको ऐसा वर्ड आए जिसकी मीनिंग आपको पता हो, ठीक है। बहुत बार ऐसे वर्ड्स भी आते हैं
जिनके मीनिंग आपको पता नहीं होते। तो उस सूरत में अगर आप ये टेक्निक अडॉप्ट करते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, ठीक है, कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, क्वेश्चन का, तो उससे जो है, बल्कि मैं इसको आगे पूरा ही लिख देता हूँ ताकि मज़ीद कोई कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट ऑफ स्पीच देख लें आप। तो हमने सिर्फ एडजेक्टिव्स देखने, हेड लेग्स भी क्या थे, नाउन, एडिफिस बिल्डिंग, एडिफिस का मतलब ऐसे बिल्डिंग ही होता है, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, और ये भी एडिफिस और बिल्डिंग वाला भी एक्सक्लूड कर दिया कि ये क्या है, ये दोनों नाउन है। तो हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, हॉट एंड वार्म और मॉइस्ट एंड ड्रेंच्ड। अब आप कह सकते हैं हॉट और वार्म, ये भी तो डिग्री है ना, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है। अब इधर मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। हमारे पास क्या था जी, एनॉयड और फ्यूरियस। इसमें ये माइल्डर डिग्री है और ये क्या है, ये सीवियर डिग्री है। इसीलिए हमने लेफ्ट टू राइट जाके इसका कॉम्बिनेशन बनाया, एनॉयड इज द माइल्डर डिग्री ऑफ फ्यूरियस, ठीक है, लेफ्ट से राइट हमने मूव किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, हॉट एंड वार्म। इसमें जो हॉट है ये क्या है, ये सीवियर है, और ये क्या है, ये माइल्ड है। तो यहाँ पर हमें इसके रिवर्स चलना पड़ रहा है। वन लाइनर के हिसाब से आप देखिए कि वार्म इज द माइल्डर डिग्री ऑफ हॉट, वार्म इज द माइल्डर डिग्री ऑफ हॉट। तो हमने रिवर्स चल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर अपना रिवर्स कर रहे हैं। तो चूंकि ऑर्डर हम रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी बी, ठीक है, मॉडिफाइड और सॉरी मॉइस्ट और ड्रेंच्ड। मॉइस्ट कहते हैं हल्का फुल्का गीला होना, और ड्रेंच कहते हैं बिल्कुल भीग जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। मॉइस्ट इधर है, और मतलब इसको फिर चलें लिख देता हूँ आप बच्चों की आसानी के लिए, मॉइस्ट और ड्रेंच्ड। ये माइल्ड है और ये क्या है, इंटेंस है। तो हम यहां से यूं जा रहे हैं। क्लियर हो गया जी। आगे देखिए जी, नंबर 12 पे फ्लैबी एंड फर्मनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के मुतालिक है। फ्लैबी कहते हैं सॉफ्ट, ठीक है, पिलपिला टाइप जो है। तो इसमें जो आपका, ये आगे ऑप्शन लिखता जाऊंगा, जो आपका वन लाइनर बनेगा वो बनेगा फ्लैबी विल नॉट हैव फर्मनेस, ठीक है, कि फ्लैबी जो होगा, कोई भी चीज़ जो नरम होगी उसके अंदर फर्मनेस नहीं होगी। अब आप फिर आपको बार बार कहता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें, बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया था अपने लेक्चर में कि जिसमें वाई होगा वो नॉर्मली क्या होता है, वाई वाला क्या है जी, वाई वाला एडजेक्टिव है, और NES वाला क्या है, ये नॉर्मली नाउन होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कामनेस, एक है काम से कामनेस, इसी तरह फर्म से फर्मनेस, ठीक है। तो NES वाला जो है ये क्या होगा, ये नॉर्मली नाउन होगा। सो अब आपने इस तरीके से ये वन लाइनर भी देख लें, और एक आप ये भी देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, एडजेक्टिव से
नाउन की तरफ जाना है, क्वालिटी है ना, ठीक है, एक क्वालिटी बताएगी और फिर वो नाउन बताया गया कि वो क्वालिटी किस में होगी। अब ये देखें एडजेक्टिव क्या था, फ्लैबी, और ये क्या है जी, फर्मनेस। अब आप इसको आगे देखें जी, टायर्ड विल हैव फटीग, फटीग क्या होता है, थकावट, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि टायर्ड आदमी जो होगा उसको थकावट होगी। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहते हैं रिच, सॉल्वेंट विल हैव वेल्थ, ये भी बात बिल्कुल सही है। और डिफाइंट, डिफाइंट कहते हैं रेजिस्ट करने वाले को, जो अपनी बात पे डटा रहे उसको डिफाइंट कहते हैं, तो डिफाइंट विल हैव स्ट्रेंथ, तो ये भी बात सही है। हमने क्या देखना था, जो चीज़ उसमें नहीं है। फ्लैबी विल नॉट हैव फर्मनेस, तो बी ऑप्शन हमारे पास बनती है इसमें, ठीक है, और बी ऑप्शन क्या है, हम्बल विल नॉट हैव एरोगेंस, कि जो बंदा हम्बल होगा उसके अंदर जो है वो एरोगेंस जो है वो नहीं होगी। थर्ड पे आप अगर आए तो ये फंक्शन है बेसिकली एमुलेट, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ईवल, लकी चार्म, तावीज़ वगैरह जिसको आप कहते हो, एमुलेट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ईवल। अब नीचे भी आपने फंक्शन ही ढूंढना है। पहले देखें, फायर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हाउस, नो। एग्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट रॉटन, नहीं। पुलिस प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉ, नहीं। पुलिस प्रोटेक्ट तो करती है बट नॉट अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट क्रिमिनल, ठीक है, ठीक है, ये अगेंस्ट क्राइम, पुलिस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्राइम, तो ये तो समझ में आती है, बट लॉ के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट नहीं करती। सो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी इसमें, हमारे पास द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन ए, दैट इज फोर्ट एंड अटैक। देन प्रीस्ट एंड सर्मन, ये क्या है जी, सर्मन कहते हैं खुतबे को, प्रीस्ट डिलीवर्स सरमन, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, वो खुतबा देता है। हम देखें पॉलिटिशियंस डिलीवर प्रॉमिसेस, हमारे यहाँ के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि ये सही है, ठीक है, कि वो वादे करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा आप बच्चों से कहा करता हूँ कि आई फील कि ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये एज ए नेशन हमारा फॉल्ट है कि हमें उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती जब तक कोई बंदा लंबी सी बात ना छोड़े ना, तो उस वक्त तक हम शायद उसको भी, कोई बंदा हमारे यहाँ अल्लाह करे कोई मतलब कोई रियलिस्टिक अप्रोच वाला पॉलिटिशियन आए, तो मुझे लगता है कि अगर वो कोई रियलिस्टिक बात करेगा तो उसको तो वोट ही नहीं पड़ेगा, उसको तो हम तो नहीं, उससे मुतासिर ही नहीं होंगे, हम तो उससे मुतासिर होंगे जो बढ़ के मारे लंबी लंबी जो है ना वो दावे करे, अब चाहे वो फिर दावे पूरे हों या ना हो, लेकिन बहरहाल हम इम्प्रेस उसी से होंगे। तो पॉलिटिशियन डिलीवर प्रॉमिसेस नहीं, ये नहीं है, दे डिलीवर गवर्नेंस, उनका काम गवर्न करके दिखाना है, पॉलिसीज डेवलप करना है। हेकलर विल कॉज इंटरप्शन, हेकलर कहते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है, तो ये तो उसका इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट वाला। लेक्चर और प्रोफेसर, अब ये देखें ये हो सकता है, देखें लेक्चर और प्रोफेसर, अब प्रोफेसर डिलीवर्स लेक्चर, ये तो मुमकिन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसके उलट जाना था, प्रीस्ट और सरमन, ये क्या था, ये इस पैटर्न पे चल रहा है, तो रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड डॉक्टर डिलीवर्स डायग्नोसिस, यस दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें वेरिसम, वेरिसम होता है बेसिकली थका हुआ, ठीक है, या सॉरी थका हुआ क्या, थका देने वाला, वेरी आपने पढ़ा हुआ है वर्ड, ठीक है, मैं आपको इधर वेरी पढ़ा हुआ है, वेरी टायर्ड, ठीक है, उसमें वो आप पढ़ते हैं ही हैड अ वेरी लुक, एंजल एंड द ऑथर एंड अदर में,
तो वहाँ पर तो वेरिसम थका देने वाला, रिफ्रेशिंग क्या है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो वेरिसम नंबर 15 पे अगर हम जाएं तो वेरिसम इज द एंटोनिम ऑफ रिफ्रेश। आप देखेंगे दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, वेरिसम भी और रिफ्रेशिंग भी, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। तो नीचे आपने क्या देखने, एडजेक्टिव्स ही देखने। देन क्लोरिक, ये कहते हैं इरिटेबल को, एनोइंग को। तो इरिटेबल ये क्या है, ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए। टेडियस एंड डल ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम है। टेडियस का मतलब भी डल, बोरिंग होता है। देन इंजेन्युअस, इंजेन्युअस और क्रिएटिव ये दोनों भी जो है क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सो ऑप्शन डी हमारे पास बड़ी एपरेंट है, सबसे इजी भी है, लेंथी वर्सेस ब्रीफ। नाउ लेंथी इज द एंटोनिम ऑफ ब्रीफ। अच्छा, एक चीज़ आपने और इसमें डेवलप कर लेनी है, और आई विश कि आप लोग जल्दी ही उसको सीख जाएं। वो ये कि ज़रूरी नहीं कि हर बार को बहुत मुश्किल ऑप्शन ही आपसे पूछी जाएगी, आपसे कोई बड़ी आसान ऑप्शन भी जो है वो पूछी जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको सपोज क्लोरिक का मतलब नहीं पता या इंजेन्युअस का मतलब नहीं पता तो आप उसमें फंसे रहें। आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि लेंथी, ब्रीफ ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। तो ऊपर वाले जो 3 मुश्किल ऑप्शन हैं उनको आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और नीचे वाली सीधी साफ ऑप्शन जो आपको पता चल रही है आप उसको पिकअप करेंगे। देन नंबर 16 पर आए जी, लॉयल्टी एंड ट्रेटर। अब इसमें हम रिवर्स जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये बेसिकली है क्या, ये वही प्रॉपर्टी वाला है कि traitor will not have loyalty। ठीक है, ट्रेटर के अंदर जो है वो लॉयल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने रिवर्स जाने, नीचे ऑर्डर का भी आपने ख्याल रखना है। इस बार आपका ऑर्डर जो है वो ये बनेगा, उल्टा, राइट टू लेफ्ट बनेगा। लायर विल नॉट हैव ट्रूथफुलनेस, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, वो इसकी फर्स्ट और करेक्ट ऑप्शन है। बाकी भी नीचे देख लें, क्रोन विल नॉट हैव एंगर, क्रोन और एंगर सेम है, इनके दरमियान होगा ये। अ पर्सन हु इज क्रोन, उसके अंदर गुस्सा होगा। क्रोन कहते हैं बूढ़ा खपती आदमी जो उसको कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट विल हैव होप, ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है। एंड रेज विल हैव अंडरस्टैंडिंग, रेज क्या है, ये तो वैसे ही नाउन है, तो गुस्से के अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकते, गुस्से वसीले की, एंग्री पर्सन होता ना अगर तो फिर हो सकता था कि एंग्री पर्सन विल नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग, या एनॉयड पर्सन विल नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग, तो फिर हम सोच भी सकते थे, अभी नहीं सोच सकते। सो नंबर 16 हो गया जी। अब नंबर 17 पर आए जल्दी से, इमेंसिपेट एंड स्लेवरी। इमेंसिपेट होता है लिबरेट करना, किसी को आज़ाद कर देना। ठीक है, नंबर 17 पे एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम्स। तो नीचे भी आपने वही देखना है। इरेज इज द एंटोनिम ऑफ डॉक्यूमेंट, नो। इंक्रिमिनेट इज द एंटोनिम ऑफ क्राइम, नो। एक्सोनरेट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्लेम। एक्सोनरेट होता है माफ़ कर देना, किसी को रिहा कर देना। ब्लेम क्या है, उस पर इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन हम इसमें मार्क कर रहे हैं। देन नंबर 18 पे अगर आप देखें तो ये जी एबोमिनेशन, एबोमिनेशन कहते हैं डिसग्रेस, नफरत। ठीक है, और एबोरेंस, एबोरेंस भी क्या कहते हैं, नफरत ही को कहते हैं। सो ये क्या होंगे, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो इस हिसाब से देखें इसको,
राइप एंड रॉ दे आर द एंटोनिम। राइप क्या होता है? पुख्ता, रॉ बिल्कुल फ्रेश। राइट एंड रीड ये सिनोनिम वेरिएंट है एक दूसरे के, मिलती जुलती चीज़ें हैं बट सिनोनिम्स नहीं है एग्जैक्टली। देन क्राई एंड वीप, यस दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्राई एंड वीप। सो ऑप्शन सी हम इसमें जो है वो पिकअप करें। नेक्स्ट आप देखें जी नंबर 19, मेंडासिटी एंड ऑनेस्टी। मेंडासिटी कहते हैं डिसऑनेस्टी को, तो ये क्या हुआ जी? ये हो गए एंटोनिम्स। मेंडासिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंडासिटी इज द एंटोनिम ऑफ ऑनेस्टी। तो विकेडनेस और डिप्रेविटी और ये विकेडनेस एक दूसरे के एंटोनिम नहीं है। करेज और फॉर्टिट्यूड ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फॉर्टिट्यूड का मतलब करेज ही होता है। ट्रुथ एंड ब्यूटी ये भी एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं है। तो करेज एंड क्रेवनेस ये जो है ये क्या है? ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। सो ऑप्शन हम यहाँ मार्क कर रहे हैं जी डी, ठीक है। क्रेवनेस होता है बुज़दिली, ठीक है, और करेज क्या होता है? बहादुरी, दिलेरी। देन अगर आप इसको देखें नेक्स्ट हमारा लैरिएट और काउबॉय, तो इसमें क्या है जी? लैरिएट बेसिकली उस रोप को कहते हैं जिससे वो काउबॉय जो है वो प्ले करता है सारा, ठीक है, तो उसका टूल है बेसिकली। तो रिंग और स्केटर का टूल नहीं है रिंग, ठीक है, उसका प्ले ग्राउंड तो है बट उसका टूल नहीं है। देन आगे देखें जी स्नेयर और ट्रैपर, यस दैट इज द राइट वर्ड, ठीक है। 21 पे अगर हम आए तो स्नेयर एंड ट्रैपर, बी ऑप्शन। टूल है तो ऑप्शन यहां पर हमारे पास क्या बनेगी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर 22 पर आए जी, फिर हम देखते हैं इंट्रेपिड और वेलर। ये क्या है जी? ये क्वालिटी है। कैसे? इंट्रेपिड विल हैव वेलर, ठीक है, उसके अंदर वेलर कहते हैं बहादुरी और इंट्रेपिड कहते हैं बहादुर शख्स को। क्लेवर विल हैव इंजेन्युटी, पहली ऑप्शन ही हमारी क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। इंजेन्युटी कहते हैं चालाकी, होशियारी, तो जो चालाक आदमी है उसके अंदर ये होगी। इम्पॉसिबल कहते हैं ऐसा शख्स जो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, तो इम्पॉसिबल के अंदर जो है वो फ्लॉज नहीं होंगे। हमने क्या करना था? कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद हो। नेव कहते हैं रोग, स्काउंड्रल, बदमाश, तो उसके अंदर इंटेग्रिटी क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, वो उसके अंदर ऑब्वियसली नहीं होगी। और जो चीज़ इनएग्जैक्ट है उसके अंदर भी एक्यूरेसी नहीं होगी। नंबर 23 पर आए, तो वो कहते हैं कि बिलिजरेंस और एग्रेसर कहते हैं बड़ा दैश में आने वाला शख्स, और बिलिजरेंस भी गुस्से को कहते हैं, ठीक है। तो एग्रेसर जो है उसके अंदर बिलिजरेंस होगी। इसको अब रिवर्स जाएंगे, ठीक है, ये भी वही है, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यही उसी का बाइनरी रिलेशन, ठीक है। तो एग्रेसर विल नॉट हैव, ये अब हमने राइट से लेफ्ट जाना है। एग्रेसर विल हैव बिलिजरेंस, तो ऑप्शन ए ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बूर विल हैव इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी क्या है? कि आपको परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की। और बूर हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, बारबेरियन जो है, मूर्स, इनको हम जो है वो बूर कहते हैं। तो जो एक जंगली आदमी है, जो एक वाइल्ड आदमी है, उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर इनसेंसिटिविटी होगी। कॉन्फिडेंस और शरकत,
शिरकर क्या कहते हैं, शर्मीला, शाय, तो शिरकर विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस। क्यूरासिटी और स्टूडेंट, ये हो सकता था अगर स्टूडेंट राइट साइड पे होता, ठीक है, अगर इनका ऑर्डर रिवर्स होता तो फिर हम ये कह सकते थे स्टूडेंट विल हैव क्यूरासिटी, बट चूंकि क्यूरासिटी विल हैव स्टूडेंट, हमने राइट से लेफ्ट जाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। मेसन और आर्किटेक्चर ये भी हम नहीं कर सकते। नंबर 24 पर आए जी। ये वो कह लें कि ग्रुप ऑफ समथिंग का है, ठीक है। आर्किपेलागो, आर्किपेलागो कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को, तो ये क्या होगा, एज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो नीचे भी देखें हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है, पेनिनसुला और स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं समुद्री रास्ते को, तो पेनिनसुला जो है वो पेनिनसुला कहते हैं जजीरा नुमा जिसके 3 तरफ समुद्र होता है और एक तरफ सिर्फ खुश्की का रास्ता होता है, तो वो तो उसका ग्रुप, स्ट्रेट का ग्रुप तो नहीं है। क्लस्टर और स्टार, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लस्टर इज द ग्रुप ऑफ स्टार। देन पिकाडिलो, पिकाडिलो बेसिकली कहते हैं छोटे मोटे क्राइम को, और क्राइम क्या होता है, एक बाकायदा जो आपका गुनाह है, तो इंटेंसिटी वही रिलेशन जो है हमारे पास बन रहा है यहाँ पर। आप इसका वाला क्या बनाएंगे, पिकाडिलो इज द माइनर फॉर्म ऑफ क्राइम, तो नीचे भी आपने वही ऑप्शन देखनी है, विंड इज द माइनर फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, ऑप्शन ए, कि अगर हल्की फुल्की हवा चल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड, और अगर ज़्यादा ही तेज़ हवा चल पड़ी है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। देन नाइव और चीट, नंबर 26, ये कॉज एंड इफेक्ट के सेंस में है। नाइव कहते हैं मासूम आदमी को, तो हम कह सकते हैं कि नाइव कैन बी चीटेड, कि उसको बड़ी आसानी से जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है, गलिबल कैन बी कन्विंस। गलिबल कहते हैं मासूम आदमी, ठीक है, तो जो भी शख्स मासूम होगा उसको बड़ी आसानी से क्या किया जाएगा, अपनी मर्जी से ढाल लिया जाएगा। देन कर्नल और कॉर्न, नंबर 27, ये टाइप ऑफ समथिंग है। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट वाला ऊपर का वो ज़रा लिख लें, इसमें सी है, ये टाइप ऑफ समथिंग है। कॉर्न इज अ टाइप ऑफ कर्नल, ठीक है, कर्नल कहते हैं गला, तो कॉर्न जो है वो बेसिकली गले की एक किस्म है। इन द सेम वे वीट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रेन, ऑप्शन सी हम इसमें जो है वो पिकअप करेंगे। ट्रिकल और स्प्यू, ये भी इंटेंसिटी है। ट्रिकल होता है आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा किसी चीज़ का बहना, और स्प्यू होता है बिल्कुल बह जाना एकदम, ठीक है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सॉन्टर वर्सेस रन। सॉन्टर होता है थोड़ा चहलकदमी करना, आराम से मटर गश्ती करते हुए जाना, ठीक है, और रन क्या है, रन है तेज़ तेज़ भागना। सो ये भी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन इसके बाद देखें आप नंबर 29 पे बंगलर और कॉम्पिटेंस। बंगलर कहते हैं बेसिकली एमेच्योर, जो शख्स अभी ये भी क्वालिटी एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो बंगलर विल नॉट हैव कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या कहते हैं, महारत, ठीक है, तो जो बंगलर है, जो एमेच्योर है, जो भी बिल्कुल बिगनर है, उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं होगी। इन द सेम वे जो ग्रम्बलर है उसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ग्रम्बलर किसको कहते हैं, हर वक्त शिकवे शिकायत करने वाला, रोते धोते रहने वाला, मारे गए, लुटे गए, बर्बाद हो गए, ठीक है, उसको हम बंगलर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 20 हमने कहीं मिस कर दिया था, वो मैं भी आपको बता देता हूँ।
इसके बाद है जी हमारा नंबर 30, विंडाल और डैमेज। विंडाल कहते हैं ऐसा शख्स जो कि कोई डैमेज जो है वो क्रिएट कर सके, स्पॉइलर जिसको आप कहते हैं। तो विंडाल कैन क्रिएट डैमेज, ये वो फंक्शन है कि विंडाल क्या कर सकता है, इट कैन कॉज डैमेज। और इसकी ऑप्शन बी आएगी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या आएगी, पेस्ट कैन कॉज अनॉयंस। ठीक है, अब एक नंबर 20 हमने बीच में मिस कर दिया था, तो उसको भी आप ज़रा देख लें। मैं इधर उसको अलग से लिख देता हूँ, इधर वो बेसिकली आना चाहिए था हमारा। ट्वेंटी पे, ठीक है, दैट वाज नोवाइस और एक्सपीरियंस। नोवाइस भी कहते हैं फ्रेश, एमेच्योर, तो ये भी क्वालिटी है बेसिकली, ठीक है, कि उसके अंदर जो है वो ये क्वालिटी जो है वो मौजूद, उसके अंदर वो क्वालिटी जो है वो मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, रस्टिक विल नॉट हैव सोफिस्टिकेशन, ऑप्शन डी, कि जो शख्स रस्टिक है उसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली नफासत जो है वो उस तरह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हमारा आज का ये टेस्ट जो है वो हम वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बैठना पड़ा होगा, बट ऑब्वियसली नॉलेज ही जो है वो एक मुश्किल चीज़ थी, एक डिफरेंट चीज़ है, तो इसलिए इस पर टाइम जो है वो थोड़ा हमेशा ही लगता है। आई डू होप कि आप सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई क्वेरीज़ हैं, तो यू कैन ऑलवेज आस्क। थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया।